have that LAN experience. They know how it works out. They know how the teams adapt to it. And I think just telling them how it's going to happen and how it's going to go down is really good for the mental state. Like, they seem more prepared heading into this. All right, well, ladies and gentlemen, we're going to be getting into our first match shortly here, but I want to give a shout out here to Sony with the Play to Win with Xperia 1 IV, creating collaboration with professional esports players, so you know it's going to be good. The Sony's Xperia is the official smartphone provider and partner here of PUBG Mobile. And as you saw before on the schedule, we do have Erangel coming up here in just a few moments to kick things off this event. High fives going out, at least air high fives as well here. But it's time to bring in our commentators, maybe have a little chat with them before the match kicks off here. We got John, Allen, and Blank joining me here on the desk. Gentlemen, this is going to be crazy. It's going to be exciting. Maybe you have some teams you want to point out. I'll leave the floor open to you. Thank you very much, Jason. Yeah, we're going to be getting into this first game. Blank, there's a lot of teams here with a lot on the line. There is, yeah, and Jason was asking, you know, is there any other teams that maybe we're looking at? I think there's one team that maybe the guys on the desk haven't mentioned yet that I'd love to talk about, and that is actually Vampire Esports. I do think that this team currently looks extremely good as a team overall. You know, they've been through a lot of different iterations of Victim Sovers at the start of the year into Victim 365, then Ion Esports in their qualifier for the Spring 22 finals, and now finally coming through, you know, now as Vampire Esports. So, oh no, they were Power Triple 8 right at the beginning. Sorry, that's Morph GG I'm talking about. But they've gone through a lot of iterations. They have now Corpai on the team, who used to be on Power Triple 8 when they had some of their better games. He's coaching, so they're talking about coaching on the desk as well. This could be a great position for them. Yeah, absolutely. It's going to be looking pretty strong for them right now. Everyone loading up into the game. I think we've got the playing path of the first game maybe loading on up here. Blank as well. You can see the players in the lobby. Look at that. They're running around. They're trying to get everything sorted. Those furtive glances over the shoulder there. Something going on. Yeah, no, just trying to get people into the match, and already we are having things kicked off here in the Pmwi, this regional clash between so many different players from so many different countries here. It's great to see the representation. There's no problems either because everyone's playing here at LAN. Game number 1 loading on up. Erangel as we kick things off here. Players loading on, the plane path moving over as it fades into the map. Loading on up. Match number 1. It all starts now. The helicopters flank the plane. Helicopters coming out of this one next to plane here. We are having our plane path already. We did get a little quick sneak peek at this plane path at the beginning of the game, heading just under Novo up towards Gaka. Now this is a fantastic little drop spot already for Stalwart. I'd imagine they're going to be dropping out the plane here, but it's Aton jumping out almost immediately, heading up possibly towards Mill to Power. That's a drop spot that they've been loving recently. Rozok, on the other hand, quite inaccessible, and that was going to be quite the big hot drop for a lot of teams like Donuts heading up there, a few other teams on that location with Damwon and Kia just underneath them in School and Apps, but you can see that Stalwart already immediately in Novorobnoye. Sometimes they will head towards North Sosnovka, but this is their preferred drop, and this is great for an 18-man lobby, John. Yeah, and then Wildcats as well over on that military base, joining them on that South Island. Those northern crossings may be a little bit more populated, do you think, after those bridges with this plane path as south as it is. Some teams will try and migrate north, sure, but that traffic jam will certainly have an impact. Yeah, you're just trying to cover as much of the map as possible. You know, James, Max, Jason on the desk, all talking about this beforehand, saying that, you know, there is going to be a lot of space on the map that you're going to have to cover. Not so many scouting positions now can be taken for these teams, just in the early game at least, just in case you get caught off guard by a team that's in the vicinity that you maybe wouldn't think would be there before. Though we do have Vampire Esports, they are doing their usual drop down towards Ferry Pier, Quarry and Primors, really taking things wide at the beginning of this game. Yeah, a little bit of a late dropout, sure, but it was fairly close by to the plane path, right? So they will have plenty of time to be able to navigate and get things sorted for themselves moving forwards on their northerly movements that will have to come through as the circle pops. So it looks like Falcon already in competition with Morph. The top of the hill currently occupied by Morph.
Looks like they've managed to find themselves a little bit of a spot. Falcons, just talking about, rezzed up in a little bit of cover. Presence known though between those two teams on that split area. Never alone. Has his team. Yep. Seems to play to the name. Look at this. You got Box Gaming with some trouble. Yeah, Box dropping right on the coastal side, and it's VGS trying to pass by them in vehicles. Now, VGS have two spots. It's up towards Severny as their secondary, Lipovka as their primary. Not able to get to any of them, so this is so awkward. But this is now time for Box to try and show some dominance. They regrouped around Break and Soaz after their decent PMGC. I think it was World League. Now they really need to show their stuff here after losing a couple of players and reforming. Nearly perfect nade there coming through from Break, but doesn't quite get the knock. They will have got that hit marker, that indication that there's a player close. They know there's a vehicle moved. Well, they still know that there's a player this close. Mini 14 with the 4X on the off angle for VGS. Should be pretty solid at holding down this ridgeline, but if 3 players from Box go down, it's going to be tough. Around the side though, gives away the position, and it's an easy spray down for Box Gaming to pick up their first elimination of the game. That's a really sick just run around there from the team. Very fantastic stuff overall. VGS just crumbling, obviously not able to get either of their drum spots in this game, and they just fumble for it. And this is what the 18-team lobby does to you. You know, you try and head to a spot that you think may be free, but it's just not. Still bleeding out VGS, down to 2. They will be taken on out. Donuts, they were contesting as well. Enigma Galaxy taking early losses. These are the 2 points that you were pointing out earlier. Yep. Yeah, that is rough there. But USG, honestly, this is a team that really wanted to take Rozhok. You know, in all the practice games we see them play before this, they have always gone Rozhok here. Just looking at anything on my drops in terms of statistics, you know, 4 Rivals was the other team that was going to head over here. But in fact, you know, Enigma Galaxy tried to challenge out. Usually they're the Pachinki team, so maybe they dropped just slightly short. USG had to go a little bit further. And just on the way, they picked up a couple of points. You love to see it. Yeah. Certainly if you're a USG fan. Falcon, 4 players in a vehicle. Not advisable. They're heading towards Yasnaya Polyana as well, which is currently occupied by Morph. On this northern rotation, they are behind the game. Morph on the western side of Yasnaya right now. They will be holding down a lot of those buildings, a lot of those compounds. Hopefully they're going to spot the Falcons' approach, right? It's a very open field. If you're looking that way, you will be seeing them. They're only in 1 vehicle as well, which means that if you're taking some pot shots, you might even be able to get a couple of eliminations there. Absolutely. I mean, there's a real chance for it. Now, VGS, you know, broken and battered, heading up still past Damwon Kia, who've still gone for that Apps School split. It's a little tighter this time, though, and I respect that from Damwon Kia. James on the desk was talking about, you know, how really they wanted to keep things survival based, get towards the end of the game. It's not about huge eliminations, just consistently putting up those placement points. Now, that's going to give you a good average point over in the PMWI, but 3 days, you do need to strike out a little bit. Donuts USG getting these initial 2 points and also claiming Rozhok straight away. This is fantastic for them. And Donuts USG, they've come out on top in Japan at the moment. Even in the PUBG Mobile showdown between Korea and Japan, they were a full 10 points ahead of anyone else in that lobby right at the top. So really fantastic stuff from Donuts USG so far. Hopefully spinning around, turning their opponents' heads whenever they can. Morph, I think they have spotted Falcons. Falcons, you can see, still with a little bit of damage on board. That might have been from earlier, probably still healing that one up. Never Alone was the player who was already knocked by the enemy team. I don't know if it was Morph, actually. I have to go back and watch that again. But Falcons did get knocked. Oh, it was Morph from up the hill. Yeah, that was the first engagement that they had. So they did already do a little bit of damage. It looks like they will not leave each other alone for now. VGS down to 2 players. They've spotted back-to-back on the ridgeline. It looks like back-to-back just want to take up position. Yeah. And see whatever vantage points they can try and claim. This is fairly interesting as well, because Regan's trying to head in the direction of Morph. These are 2 teams that drop in Yasnaya. Regan's with a Yasnaya South Kameshki split, but Falcons trying to take up this position as well over in Yasnaya. So a lot of contention on this eastern side of the map. I know that, you know, 52 Esports, they've tried to take Stalba and then South Yasnaya as well before, but right now they're right on the western coast at the moment. Yeah, I mean, it seems
seems like they've changed it up. I mean, to be fair, there have to be some changes, right? In this lobby, it's a new mode that these teams won't have played with 18 teams in it, right? It is seemingly a small difference, but it absolutely will have an impact, as the desk covered previously. So we'll have to see what impact that actually has, because right now we haven't seen much more than 1 or 2 hot drops, right? Well, what I will say, you know, is that people have been very stubborn on their drop spots, and even just from the small research that I was able to do, I say small, modest, small research they were able to do about their drop spots beforehand in this tournament, you know, a lot of these teams have gone for these drop spots regardless of how south that playing path was. So, you know, we could have this gentleman's agreement going on from a lot of these teams. It's like, these are our spots, we can't go away from them. So secondary spots just really aren't too available anymore. And for that reason, if you get a really, really bad playing path, you could be in for a very bad game. Playing path from this one was very south, and the circle did shift up north. And I'm looking at the teams that have made that journey north early, and I'm looking at 4 rivals, right, all the way up in Severny. Right at the top of this circle now, playing from their northern bastion. Stalwart Esports on the southeast of the circle, just about crossing in. One of the favourites of this tournament right now. Yeah, absolutely. Like, I don't have too many notes on this team just because they play things so clean, and there's only so many ways you can write clean, to be honest with you. So I was very, very impressed with Stalwart. I think so is the desk. You know, they're set for a fantastic PMWI, but we could see some rising stars and rising countries just come out of nowhere and blast them out of the water, but we'll have to wait and see here. But for Stalwart, so far things have been very good. I really do like this Novo drop for them in the beginning here. The edge of the map with 18 teams, it's going to be rough. There's not a lot of positions to play in, and with the loot that you get on board from Novo, with the 6 to 7 med kits that we saw already on just one of their players, you know, they'll be able to outlast that Storm on the edge. You'd hope so, with the caliber of teams that we're dealing with anyway. Although that works to their detriment as well, doesn't it? I mean, they have to face off against this super high caliber lobby. It's not going to be easy. Aiton take up the gas station. It's out to the west of Yasnaya Polyana. North looking their way. Yeah, so North just on that western road, right, with Aton just underneath them. The Yasnaya, for Morph, that being their original spot, they've actually moved west here towards that northern coast. So, you know, they're just looking out for any cheeky teams that try and hold on this north coast. And it's a great idea as well, because it's a very easy position to corner and cause mayhem for many teams, because you don't really want to cluster around the southern edge. There's so much space up towards Severny, especially with that southern playing path. This is a great position to, you know, take up and just chill out, take some time for yourself, especially if you dropped in South George, like some of the teams. In fact, we've already seen TJB move up. Vampire Esports might want to head up there, so will 52 just in the South George bridge right now. So Morph could get a lot of points just from this singular position. I'm looking at USG as well, right? You talked about earlier in the game. It's great they've managed to get Rozhok, they've managed to lay claim to that area, but if they don't leave there early enough, it could prove to be their tomb, their mausoleum, right? If they aren't able to get across early enough, if it's a northern shift, they could really be scuppered. Oh yeah, I mean, you can take every one of these teams and just imagine that they're elastic bands, and USG is that first elastic band, and you know when you create that elastic band ball, at some point it is going to break and explode, and poor USG is right in the middle. They are going to just get bigger elastic bands. I don't you could do. I'm working with very small elastic bands here. You certainly have had that opportunity, probably more so than most of these other teams. Morph had to move a lot at the start. I mean, Nick. Right. Just massive. Also brilliant beast
advantage. Chop. That move of this. Yeah, they're not. Land. Scott. Soul fight aitan. In that. So now Players. team. And it's what's back? But well, stretch. That come up with right. Now cross all these. Cool. Teams on the northern side are going to be dragged across sandpaper, basically trying to get into this circle. It's so unfortunate because you assume it's going north here. TJB got such a nice position and it swings the back down south. Now I want to see USG, the Japanese team, translate this because they've been given such a good opportunity here for a chicken dinner right at the beginning of the day. Acton looking to guard them out. Currently on the eastern side of the circle. Will stop that rotation north, stop that progression west. Make things difficult. Down one, ahead. You can see they're taking a couple of knocks from back to back. I think this is the circle where most of this impact to the 18-team lobby will be felt, although we are down to 62 players. 17 teams, so I did not expect that this at this point in the game. Already 17 minutes. It is absolutely nutty here. 52 esports do knock themselves, so that is extremely unfortunate. They're coming from that western side. But Stalwart, we mentioned them. They were taking a fight versus the Wildcats, and this is where they need to play the edge game perfectly. They've been thrown a little bit of a lifeline here on the southern edge. See if they can make anything happen with it. Stalwart taking shots. Really fast and strong rotation, I'd say, but Lightning does get caught there, unfortunately, for the spray down. And they are going to lose him at the wall at the top, back to back, have their Polo. Representative for the squad. The nades start to ring out. They're not going full aggression just yet, Blank. Now,
if you want to get yourself the 2022 PMWI gun skin and outfit, you know, we have a sale period going on through from the 4th of August through to the 13th of August. We have 50% off PMWI packs, and you get a set straight away in that time frame, and 5 extra chances to draw the PMWI treasure chest. And if you miss out on that first sale period, there is a second one from the 14th of September all the way up till the 15th of the next month, where you get 16% off PMWI packs. You get 6 chances to draw PMWI treasure chests. Looking straight back at the game here, back-to-back have actually made it quite far from there. It was quite a difficult drop spot for them on that southern edge on the coast. Wildcats still in this one with 3 players. Surprisingly, you know, they took an absolute beating from Stalwart on that southeastern edge, but the circle is starting to close in right now, directly on top of Rozhok. Oh, USG, yes please. They're very happy about that, you're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. ब्लक गरिदिइराखेका छन् वर्का प्लेयर उनी के फर्दर मोर कमिटमेन्ट देखाउँछन् त यहाँबाट देख्न सक्छौँ वाइल्ड कार्ड्सका प्लेयर्सहरूले ट्रोइबलको युजेस फेरि गरे तर कुनै पनि रिजल्ट भने चाहिँ त्यहाँ दिन सकेन रकीको एचपी लो थियो फाइनली रकी जाउन एन्ड अर्को प्लेयरले उता पार्टनर बचाउने कोसिस गरिराखेको हामी देख्न सक्छौँ जो अहिलेलाई एकदमै क्रिटिकल सिचुएसनमा छन् यताबाट त कभर मिल्ला उनलाई तर पछाडिबाट आउने शट्सहरूबाट उनी कसरी बच्छन् त मेबी त्यो एउटा डिसएडभान्टेज यहाँ आइडब्ल्युडी पुश गर्ने कि नगर्ने आइडब्ल्यू भन्ने आइडब्ल्युडी भन्ने आई थिङ्क म थोरै कन्फ्युज भइरहेको छु त्यहाँ एनिवे मर्फको टिमको कुरा गर्दै थिएँ म प्लेसमेन्टको बारेमा थाहा थियो हामीलाई यो अप्ठ्यारो प्लेसमेन्ट छ भनेर सोल भर्सेस स्टलबर्टको भनौँ न सोसल मिडिया राइभलरी बनेको थियो यहाँ अब इन गेम फाइट पनि होला जस्तो छ एक्सन हातमा नेड लिएर घुमिरहेका छन् एक नक निकाल्छन् कि राइट डिरेक्सनमा फालेका छन् उनले नेड ओके थ्री चिप ड्यामेज मात्र डिल गरे उनले एक देख्न सकिन्छ VGS को टिमको साइडबाट टप थोरै अगाडि छन् उनको लागि अझै बेटर एंगल देखिरहेको छ फ्र्याङ्कली भने एकै राम्रो कम्बिनेसन हेर त ढोका फुटालियो र यो नेड गयो भने सही हुने थियो बट ढोका फुटालिएन ढोका पहिला फुटेको भए गनको साथमा देन इजी नक चाहिँ हुन सक्थ्यो सोल भर्सेस स्टलवर्ट टेक्चर त्यहाँ जोनले गर्दा फर्स्ट डिभिजन टपको एंगल राम्रो छ भन्दै थिए गब्लिनलाई पनि नक निकालेको छ अब त पुश गर्नको लागि गएको थियो टिम बट टपलाई चाहिँ स्टारले नक निकाले स्टारले फिनिस गरियो एक्सन आउँछन् मेरो साथी मेरो भाइलाई फिनिस गर्ने भन्दै उनी रिभेन्ज लिइ पनि सके स्टलवर्टले टप लुज गरे पनि 2 एलिमिनेसन 3 एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिँ एउटा इन्जोय गर्नेछ बट टिपिकल रोजाक सर्कल डेट आई गाइज मिस हुँदैछ एटलिस्ट हाम्रो साइडबाट चाहिँ स्टलवर्ट 3 पोइन्ट आफ्नो नाममा निकालेको छ उनीहरूको 1v1 अथवा 2v2 टिडिएम त भएन बट कहीँ न कहीँ इन गेम फाइट हुँदैछ जहाँ स्टलवर्ट अलिकता हेभी देखिँदैछ भने ओमेगा केही गरिकन केही पोइन्ट आउँछ कि भन्ने आशमा पुरा काप्चातिर छ अब भने त बच्नु पर्यो आफ्नो टिमलाई सर्भाइभल पोइन्ट्स दिनुपर्ने हुन्छ उनको तर्फबाट यदि उनी बच्न सक्छन् भने तर पनि मलाई लाग्दैन उनी धेरै धेरै बच्छन् कि भनेर भ्याम्पायरका प्लेयर्सहरू हामी यहाँ पानीमा रहेका प्लेयर्सहरूलाई वाइप गरिराखेको देखिएको छ भ्याम्पायरका बाँकी दुईजनालाई पनि ल्यान्ड एरिया टच गर्नुपर्ने त्यसै पनि यहाँ कन्डिसन रहेको थियो टप 13 मा गेम कन्भर्ट भइसक्यो 35 प्लेयर अझै पनि लबीमा छन् स्टार्टिङबाट नै हामीले एग्रेसन अथवा क्लासेसहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि ओके यो म्याच चाहिँ छिटो सकिएको हो कि जस्तो पनि लाग्ने यहाँ देखिएको छ 4 राइभल्सका लास्ट प्लेयर जो छ उनी थोरै जोनको एरिया उनलाई चाहिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मुभ गरेर डिसिजन उनी लिँदै थिए तर उनको पार्टनर पनि त्यहाँ नक भएको कन्डिसनमा रहेका थिए बचाउने त चान्सेस नै रहेको थिएन पनि उनलाई फिनिस पनि गरिसकिएको छ इजेरीका प्लेयर पनि यहाँ जोनको ड्यामेज डिल गर्दै हामी यहाँबाट मुभ गर्दै गरेको देखिँदै You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. हिल गर्नतिर लागेको छन् एन्ड मिसाइल चाहिँ गाडी रेडी गर्दैछन् आरएसजी लबीबाट बाहिर निक्लियो टप 10 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ आई थिंक सोलको जुन लास्ट प्लेयर बचेका थिए ओमेगा उनी अझै पनि जोनमा रहेका छन् भ्याम्पायर पुरा एजसम्म मात्र खेलेको छ 8 एलिमिनेसन पोइन्ट्स यो टिमले अलरेडी आफ्नो नाममा गर्यो 6औं सर्कल आइसक्यो हाम्रो 22 मिनेटको गेम प्ले 22.5 मिनेटको गेम प्लेमा युएससी पनि अगाडिपट्टिको एरिया होल्ड गर्नको लागि पाउनको लागि मुभ गर्दै त छ बट युएससी त्यति खासै प्रब्लममा छ जस्तो मलाई लागेको थिएन बट प्रब्लममा स्टलबर्ट आयो किन भन्दा टप फिनिस भइसके एक्सन अहिले नक हुँदैछन्
दुईटा गन पावर प्लेयर भने चाहिँ स्टार्टिङ त नभनौँ फाइटको चाहिँ यो जुन जबरजस्तीवाला फाइट छ भनौँ एग्रेसन छ त्यतिखेर चाहिँ रिजल्टै ननिकालिकन प्लेयर चाहिँ डाउन हुनुपर्ने कन्डिसन बनिराखेको छ यहाँबाट देख्न सक्छौँ प्लेयर्सहरूको इन्ट्री चाहिराखेको थियो उनीहरूलाई कम्पाउन्ड स्पेस खाली गर्नुपर्नेछ त्यो एउटा डिसएडभान्टेज लोवर ग्राउन्ड उनीहरूलाई बनिरहेको थियो भने भ्याम्पायरका प्लेयर्सहरू थ्रोएबलले होल्ड गराउन चाहन्छन् त्यो टिमलाई त्यो थ्रोएबलले पनि केही हदसम्म ड्यामेज डिल ब्याकमा भन्नुपर्दाखेरि नकै निकाल्न सफल रहेका थिए हुन त त्यो एरियामा रहेको टिमलाई नै यहाँबाट चाहिँ एलिमिनेट गरेर देखाइदिइसकेका छन् भ्याम्पायर फर्दर मोर एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूले एड गरिराखेको हामीले देख्न सक्छौँ युएसजीका प्लेयर्सहरूलाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नम्बर रोकिएको छ उनीहरूले सर्कलको इज पनि बनाउने कोसिस गर्दै थिए भने स्टारबर्टको एक्सनलाई त बचाइएको थियो तर स्किललाई भने चाहिँ अब फिनिस गरियो ओके स्टलबर्टको टिम थोरै थोरै गर्दै ट्रबलमा आउँदैछ मिनी म्याप पनि माथि कर्नरमा देख्न सकिन्छ जहाँ स्टलबर्टसँग जोन त रहेछ बट लेटर फेजमा आई थिङ्क जोन छ उनीहरूसँग येल्लो कलरमा उनीहरू भए मान्थेँ मैले किन भन्दा अलिकता कम देखिरहेको छु मैले मेरो आँखाले भन्दा पनि क्वालिटी अलिकता कम फिल भइरहेको छ एटलिस्ट मलाई चाहिँ टप 7मा गेम कन्भर्ट भइसक्यो 19 प्लेयर रहेको छन् अर्बन एरियामा सर्कल बनेपछि लट्स अफ द पुस हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्थ्यौँ ओमेगाले एक नक निकालेको थिए बट उनको पनि एचपी ठिकठाक नै रहेछ मैले सोचेँ कि ड्यामेज फेस गरेका छन् उनी बट नो वालको साइडमा कभर बनाएर उनी अहिलेको लागि जीवित नै रहेको छन् टप 7मा सोल छिर्न त सफल रहेको थियो गरिरहेको छ ड्यामेज दिने युटिलिटी रहन्छ बक्सको प्लेयर जुन हाम्रो फ्रेममा छन् उनीसँग ओमेगा अगाडि मुभ गर्दैछन् उनीसँग पनि युटिलिटी छैन सो द्याट्स वाइ कसरी हुन्छ बच्ने उनको सोच रहनेछ टप 6मा छिरेको छन् उनी थाहा छ उनी बाहिर निस्किन उनी फिनिस हुन सक्छन् टप 6 छैन अब त उनी टप 5 पनि पुगिसकेको छन् बक्सको टिमको 4जना प्लेयर मिलेर एकजनालाई खोज्दै थिए बट धेरै अगाडि आयो ब्रेक एन्ड उनलाई पनिस गरिएको छ नक निकालियो रिभाइभ गर्नको लागि त मुस्किल देख्छु म किन भन्दा त्योसम्म रिक्स लिएर कोही आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन स्टलबर्टको टिमको कुरा गर्दै थियौँ हामी सायद उनीहरूले नै सोललाई फिनिस गर्न सक्छ किन भन्दा वालमा बसेको प्लेयर त्यताबाट भिजिबल रहन पाए बट नो अझै पनि भिजिबल त उनी छैनन् जोन स्टलबर्टसँग नै रहेको छ 2 म्यान भए पनि म आश गरिरहेको छु कि उनीहरू अझै माथि जान्छ एटलिस्ट ऱ्याङ्क वाइज उनीहरूले सही निकाल्न पनि सक्छन् जस्तो देखिएको छ भनौँ न यतातिर दुईवटा टिमको बिचमा क्लास बनिरहेको छ नम्बर काउन्ट गर्दैछ भ्याम्पायरका प्लेयर्सहरू ब्याक टु ब्याक राम्रो पोइन्ट्स निकालि त राखेका थिए यहाँ भने चाहिँ थोरै भल्नरेबल बन्न पुगे एकजना प्लेयर उनीहरूको डाउन छन् उनीहरूको अगेन्स्टमा रहेको टिमको पनि कन्डिसन त थोरै क्रिटिकल नै रहेको थियो भने स्टारबर्टका प्लेयर पिकाले चाहिँ स्पट गरे ओमेगालाई लबी बाह्र चाहिँ भने बाहिर निकाल्यो टप 5 को इन्ट्री देखाउन सफल रहेको थियो टिम सोल युएसजीका प्लेयर अब भने उनी चाहन्छन् त्यो स्पटलाई होल्ड गर्नलाई उनले पार्टनर रिभाइभ गर्ने चान्स पनि मौका पनि भने चाहिँ उनलाई बनाउन दिएको छैन ब्याक टु ब्याक प्रेगरको प्रेसर केही कन्सर्ट्सहरू पनि त्यहाँ गइराखेको थियो भने अब यो 19 फिनिसेस क्लच गरेर देखाउने चान्सेस एकदमै कम छ एन्ड मैले त्यहाँ किल 19 देख्दै थिएँ भ्याम्पायरको टिमको कति चाहिँ एड गर्ने यो टिम कति चाहन्छ किल 19 एलिमिनेसन पोइन्ट मैले अलरेडी नै भनेको थिएँ नि यो लबी यस्तो भएपछि हामीले 20-25 किल एलिमिनेसन चाहिँ नर्मल्ली देख्नेवाला छौँ भनेर त्यो सायद आज राइट पनि प्रुभ हुँदैछ पहिलो म्याचमा नै नर्मल कुरा रहेको थियो बट यहाँ नेड युज गरिदिन्छ बक्सको एगेन्स्टमा के ड्यामेज दिन्छ कहीँ ओ ब्रेक बचेको छ नि यहाँबाट त नक भएन बट अर्को युटिलिटी फेरि एक्सनले फालेको छ नि यहाँ एक नक त म आश गरेको छु मिनिमम पनि यस ब्रेक दोस्रो चोटि नक भएको छ एकदमै खराब टाइममा युटिलिटी पनि मैले युज भएको देखेँ बट त्यो वेस्ट मात्रै हुन गयो बक्सको टिम ओपनमा पुश गर्न बाध्य भएको छ PMW आई थिङ्क पब्जी मोबाइल वर्ल्ड लिगको जुन सर्कल थियो हामी देख्न पाउँदैछौँ मेबी ओरेन्ज रकले म्याच जितेको खाले सर्कल किन आइकोनिक भन्दै चाहिँ इन्डियन कम्युनिटीमा चाहिँ यसलाई अलिकता प्रमोट गरिन्छ यो सर्कललाई प्रमोट गरिन्छ मलाई ठ्याक्कै त्यही फिल चाहिँ आउँदैछ एन्ड PMWL वर्ल्ड लिग भनौँ न सो सेम फिलिङ पनि आउँदै थियो भने युएसजीका प्लेयर पनि फिनिस निकाल्दैछन् बट जोनभन्दा बाहिर रहेको त मिसाइल एनी टाइम फिनिस रहन सक्छन् उनी फिनिस भइसकेपछि स्टलबर्टले पहिलो म्याच पनि टप 3मा आफूलाई ल्याइसकेको छ टप 3 मात्रै होइन अझै माथि जान सक्छ कि भनेको बट उनी स्पटेड रहे फिनिस गरिएको टप 3 नै उनीहरूको फाइनल डेस्टिनेसन भने 22 फिनिस भ्याम्पायरले अलरेडी ओके ह्युज पोइन्ट्स यहाँ निकालिसकेको छ भ्याम्पायरको टिमको तर्फबाट उनीहरूको अगेन्स्टमा रहेको 23 जम्मा 2 एलिमिनेसन पोइन्ट यहाँ देखिएको छ लास्टमा स्पट गरिनेवाला छ इजी टेक डाउन त्यहाँबाट निकालियो एन्ड भ्याम्पायर स्पोर्ट्स त्यहाँ निकाल्दैछ एउटा सही गेम वाट अ पर्फर्मेन्स अब डोमिनेसन कसरी निकाल्यो भने कि उनीहरूलाई एडभान्टेज थियो भन्ने कि भनौँ न हरेक कुराबाट अन पेपर अन रिजल्ट भने चाहिँ सही देखिएको छ एन्ड यस वाट इज स्टार्टिङ फ्रम भ्याम्पायर कि भ्याम्पायरले 25 फिनिस निकाल्यो मैले भनेको स्टेटमेन्ट एटलिस्ट उनीहरूले यहाँ चाहिँ राइट गरिदिएको छ उनीहरूले निकालेको छ सेकेन्ड दिन राम्रो पोइन्ट्स यहाँबाट कलेक्ट गर्न भ्यायो उनीहरूले के भन्ने पहिलो म्याच हो ल्यान्डको आफ्टर अ लङ टाइम ग्लोबल लबीमा
यो तरिकाको गेम प्ले हामी एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ पनि एन्ड त्योभन्दा बढी पनि प्लेयरहरूले चाहिँ प्रुभ गरेर देखायो एन्ड यस ल्यान हो भनेपछि यो भाइब अथवा यो फिलिङ त आउने नै थियो जहाँ प्लेयरको नजिकै पुरा क्यामेरा घुमिरहेको हुन्छ, प्लेयरले एक्स्ट्रा फुटेज पाइरहेको हुन्छन्। हामी साइड कर्नर लागेको छ, हामी यति कर्नरमा यति आउँदैछौँ भने प्लेयरहरूले चाहिँ बढी फुटेज पाउँदैछन्, उनीहरू चाहिँ बढी देखाउँदैछन्। यस यो ल्यानको यही नै भाइब हुन्छ एन्ड देन ल्यानको भाइब 18 टिमको भाइब लबीमा मैं दाद देना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को इस मैच के अंदर सरवाइव करवाया, लेकिन इन सारी बातें एक तरफ, सारी परफॉर्मेंसेस एक तरफ, वैम्पायर ई स्पोर्ट्स ने जो दिखाया दैट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। और ऐसा हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार कोई एक स्क्वाड निकल कर लाइक 20 किल स्कोर कर लेगा पहले ही मैच में। देखिए वैम्पायर स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको याद होगा रोज़क का जो वाटर्स साइड है वहाँ पर संभाला, वाटर्स एरिया को वहाँ पर 7 से 8 किल्स उठाए, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वैम्पायर कर देते हैं मैच रैंकिंग की, जहाँ पर मैच 1 के अंदर 39 पॉइंट 24 किल्स पॉइंट्स यहाँ पर ये टीम लेकर जा चुकी है और वहीं पर यूएससी सेकंड स्पॉट पे मौजूद विद 16 पॉइंट्स। लुक एट द सोल टॉप 5 डबल से भी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं सेकंड पैदा प्राइवेट टीम के मुकाबले में। और अगला बेशक ये टीम मैच मिस भी कर दे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। थर्ड स्पॉट पे मौजूद है टीम सॉलिड स्पोर्ट्स, 5 किल्स उनके पास ही मौजूद हैं। एग्रेशन तमाम टीम से मैं कहता हूँ कहीं ज़्यादा इस टीम ने दिखा दिया और इस बारे में हम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन बात करते हैं फोर्थ स्पॉट पे मौजूद बॉक्स गेमिंग की। 14 टोटल पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं। एग्जैक्टली और टीम सोल ऑन द 5th स्पॉट फ्रॉम इंडिया 9 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब। टीम एटॉन ई स्पोर्ट्स 7 पॉइंट्स लेकर जाते हैं, 5 किल्स मौजूद हैं। वीवो का जो स्क्वाड है 7th स्पॉट पर 6 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब ओवरऑल इस मैच में। DWG डैम1 गेमिंग विद 5 पॉइंट्स, 1 किल रहेगा और 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने बैकपैक में लेकर जाने में कामयाब। सो पहले स्पॉट को छोड़कर ऑलमोस्ट जितने भी टॉप 5 के अंदर टीम्स हैं वो काफ़ी क्लोज उन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं और वैम्पायर ई स्पोर्ट्स ने बहुत किल छीने हैं, बहुत से प्लेयर्स को सर दर्द उन्होंने लगवा दिया है और आई थिंक सो काफ़ी प्लेयर्स की अब जो है वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। आई थिंक सो वो लैन के अंदर वो होगा ना कि जब एक टीम 19-20 किल्स करके लेकर जाती है तो पूरी की पूरी लॉबी उनकी तरफ मुड़ कर देख रही होगी कि भाई ये क्या किया, ये मतलब तुम लोगों ने किया क्या है हमारे साथ। सो वो वाले सीन्स जो हैं वो बना दिए जा चुके हैं वैम्पायर ई स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन इस डोमिनेशन को कंटिन्यू रखना एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। एंड इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव अलादीन इज़ कि वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं अगला मैच चैलेंजिंग होने वाला है। बिल्कुल जी, वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के लिए अगला मैच चैलेंजिंग इस तरह से भी हो सकता है कि अब तमाम लॉबी की नज़र उन पर होगी और लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि थोड़ा सा ज़रा मैच की तरफ वापस जाते हैं। अगर वहाँ पर यूएसजी की थोड़ी सी बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा ही ईजी एंट्रेंस दे दी टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स को, मुझे उस चीज़ पर बिल्कुल भी मैं अभी भी वो सोच कर हैरान हो रहा हूँ कि एक टीम ऑलरेडी इतना कहर मचा रही है, आपने उसको बासानी सर्कल में आने दिया, उसके बाद उस टीम ने जब सर्कल में एंट्री ली तो उन्होंने मज़ीद कहर बर्पा किया। उन 7 से 8 नंबरों को, जो 8 से 9 नंबर से जो कि वाटर साइड पर उस टीम ने बटोरे थे, उसको वो 20 से 24 तक ले जाते हैं और उस टाइम पर बॉक्स उनके ऊपर पुश करती है, उस टाइम पर यूएससी को उनकी तरफ से एलिमिनेट किया जाता है। तमाम टीम्स को यहाँ से जो खदेड़ती हुई टीम नज़र आती है और एक एक करके किल्स वो बटोरे जाते हैं अपने बैकपैक में। हर चीज़ ऑन पॉइंट थी टीम इस टीम की, वैम्पायर स्पोर्ट्स की। थाईलैंड से ये टीम आई है और आकर इन्होंने जब वो कमाल दिखा दिया अपना। आप इनकी कोऑर्डिनेशन की बात करें, इनकी सिनर्जी की बात करें, इनका जो ग्रेनेड्स का यूजेस, यूटिलिटी यूजेस था वो बहुत अच्छा था। कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं देखा कि ये टीम जो वो किसी टीम पर पुश करते हुए एक नॉक भी दे जाए, नॉक तक नहीं दिया गया इनकी तरफ से। इनफैक्ट जब हमने देखा एटॉन ई स्पोर्ट्स के जो अकेले प्लेयर उस घर के अंदर मौजूद थे, उनको भी एलिमिनेट इस टीम की तरफ से नेड्स का इस्तेमाल कर किया गया। सो ये किसी को भी किसी भी प्लेयर को इनफैक्ट इनकी तरफ से अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा कि मौके का फ़ायदा उठाएंगे, चलो अच्छा ये प्लेयर यहाँ पर इस घर में अकेला मौजूद है तो एक साथ रश करेंगे, इस प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे। नहीं, उनकी तरफ से हर जगह पर, हर प्लेयर पर, हर टीम पर एक ही स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की जा रही है एंड आई थिंक सो इसी की वजह से ये टीम 24 किल्स कर लेकर गई है। बिल्कुल मौका नहीं दिया गया बाकी टीम्स को खेलने का। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि PMW जैसे लेवल पर यहाँ इतनी बड़ी डोमिनेशन जो है दिखाई जा सकती है इसकी टीम की तरफ से।
लेकिन चलें फॉर रेबल्स की थोड़ी सी बात करते हैं। आपने देखा कि अर्ली एलिमिनेशन उनके प्लेयर्स को हमने होते हुए देखा। उसके अलावा निग्मा गैलेक्सी की अगर बात की जाए, ये भी एक टीम है जो कि थर्ड स्पॉट पर आई थी पीएमजीसी के अंदर, और उनकी तरफ से भी आगाज़ में ही 2 प्लेयर्स अपने लूज़ किए जाते हैं। तमाम वो टीम जिनको मैं सोच रहा था कि हाँ, मैं इनको इससे पहले देख चुका हूँ ग्लोबल चैम्पियनशिप में, ये यहाँ जो है वो कुछ कमाल करेंगी, उन सबको हमने अर्ली फाइट्स में जूझते हुए देखा। वैम्पायर स्पोर्ट्स भी अर्ली फाइट्स में जूझती ज़रूर है, बट दे मेड श्योर कि वो किसी भी तरह से एलिमिनेशन वाली साइड पर ना आए। नॉक तक नहीं डील किए जाते साथ। अगर हमें नॉक्स दिखाए जाए वैम्पायर स्पोर्ट्स के, तो शायद हमें 4 से 5 ही नजर आए, इससे ज़्यादा नजर नहीं आने वाले। 4-5 भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने इस मैच खेला। लेकिन अगला मैच किस तरह से अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है ये टीम, फिलहाल जिस तरह का खेल ये दिखा चुके हैं, अगले मैच तक एटलीस्ट अगले 2 मैचेस तक इनको कोई बाकमाल खेलने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये एक अच्छा मौका है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट कर लें, जितना अपनी पोजीशन को जो है वो मुस्तहकम किया जा सके इनकी तरफ से, उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। एग्जैक्टली अलादीन, वही बात है कि आने वाले मैचेस इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि इरांगल के अंदर जैसी आप डोमिनेशन दिखा पाते हो, ऑब्वियसली आप वैसी डोमिनेशन शायद मिरामार में ना दिखा पाओ, क्योंकि उसकी दूसरी वजह यही है कि आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि बाकी जो लॉबी है उनकी नज़रें ऑब्वियसली उन पर जमी होंगी। वैम्पायर ई स्पोर्ट्स को अब ढूंढा जाएगा कि ये स्क्वाड अगले मैदान में कहाँ पर मौजूद है और क्या है इनकी स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट जो और एक और चीज़, जो टीम के कोचेज़ हैं जो इनके साथ आए हुए हैं, आई थिंक सो वो इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करने वाले हैं। हाँ, कोच शायद यही कह रहे होंगे कि इसकी तैयारी तो मैंने भी नहीं करवाई थी जो तुमने कर दिया, और मे बी कल ये आउट ऑफ सिलेबस ब्रेकफास्ट के टाइम पे तमाम टीम्स कहेंगी कि वी आर हैविंग व्हाट टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स इज हैविंग राइट नाउ। तो हमें भी अब वही जो ब्रेकफास्ट है। लेकिन चलें हाईलाइट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, और एक्शन को दोबारा से देखते हैं कि किस तरह से इस पूरे ही मैच में जो वो डोमिनेशन दिखाई गई। आगाज़ देखें डोनट स्पोर्ट्स की तरफ से किया जाता है, और टीम निग्मा गैलेक्सी जो कि सबसे पहले इस मैच से एलिमिनेट हुई थी, उनके ऊपर गर्ल्स बटोरे गए। लेकिन टीम वीजीएस की बात करें, वो भी हमें कुछ प्रॉब्लम से दो चार होती हुई नजर आई, लेकिन डोंग जियाबाओ जिस तरह से एग्रेशन दिखाती हुई नजर आती है, और रीगन्स को भी हमने देखा कि अर्ली फाइट्स में उन्होंने काफ़ी कुछ बटोरे था। जी बिल्कुल, और टीम स्टॉलवर्ट स्पोर्ट्स एक्शन की आपने बात की, तो एक्शन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। टीम सोल के 2 प्लेयर्स को गिराते हैं इस मैच से, और टीम सोल को डाउन टू 2 मैच स्टैंडिंग करते हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा ओमेगा को, जैसे उन्होंने सोलो सर्वाइवल अपना कुछ हद तक यकीनी बनाया, टॉप 5 में अपने स्क्वाड को लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं। वैम्पायर ई स्पोर्ट्स से खून चूसते हुए इस सारी लॉबी का, सारे के सारे एग्रेशन को अपने अंदर समाते हुए, चारों के चारों प्लेयर्स 7th फेज ऑफ द सर्कल में सर्वाइव कर रहे थे। वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के एंड पर आकर, इनफैक्ट आखिरी जो 2 से 3 मिनट्स थे उससे पहले इनके 2 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं, लेकिन जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं उन्होंने बॉक्स गेमिंग का बहुत अच्छे तरीके से सामना किया। सो ज़्यादा बातें हम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स पे इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेज इस स्टेज पर आना, और इनफैक्ट पहले दिन आना, वो भी लैंड में, किसी और कंट्री में, किसी और एक एटमॉस्फेयर के अंदर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर औकात टीम्स को 1 से 2 मैचेस लग जाते हैं इस सारे जो सारा सीन होता है उसको अपने अंदर समाने में, एब्जॉर्ब करने में थोड़ा उनको टाइम लग जाता है, थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लग जाता है। लेकिन वैम्पायर ई स्पोर्ट्स आई थिंक सो इसके पीछे जो प्रैक्टिस है, जो माइंडसेट है, मैं उसको दाद ज़रूर दूंगा। व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट मैचेस अलादीन? मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, खासकर वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के बारे में, 52 के बारे में, टीम सोल के बारे में। ये तीनों ऐसे नाम हैं, आपको क्या लगता है आने वाले मैचेस के अंदर, इनफैक्ट अगले ही मैच के अंदर, व्हाट डू यू बिलीव? जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन। देखिए, वैम्पायर ई स्पोर्ट्स से तो मैं पहले तो मैं उम्मीद इतनी ज़्यादा लगा नहीं रहा था फर्स्ट मैच में, लेकिन अब देखेंगे पहले मैच के बाद वो ऑब्वियसली फेवरेट्स तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा को बहुत शानदार मैच इंग्लैंड का नहीं निकलने वाला। मैं किसी भी तरह से कास्टर कर्स नहीं लगा रहा ख़वातीन हज़रात, एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैच निकालने के बाद, इतना अच्छा मैच निकालने के बाद थोड़े बहुत आप भावुक तो हो ही जाते हो, थोड़े बहुत आप ओवर कॉन्फिडेंट तो हो ही जाते हो, लेकिन ऑब्वियसली इसको अवॉइड करने के लिए उनके पास कोचेस मौजूद होंगे। लैंड का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है आपको, लेकिन उस प्रेशर को भी जिस टीम ने संभाल कर इतने किल्स निकाले हैं, शायद वो अगला मैच अच्छा निकाले, बट बहुत ज़्यादा अच्छी की मैं उम्मीद नहीं लगा रहा। किसी और टीम से मेरी उम्मीद ज़रूर है, जिस तरह से फॉर रावल्स को मैं कहूँगा कि वो एक कमबैक हमें करती हुई नजर आएगी। सेकंड मैच के अंदर एक अच्छा मैच दिखाया जाएगा उनकी तरफ से, बॉक्स गेमिंग की तरफ से भी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। बट अगर मुझे एक टीम पिक करना हो तो मैं शायद फॉर रावल्स के साथ जाना चाहूँगा फॉर द नेक्स्ट मैच, कि वो अगले मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे।
मैं आरजीएस को देखना चाहता हूँ कि आरजीएस जैसी डोमिनेशन उन्होंने पेल में दिखाई है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एग्जैक्टली आरएसजी सॉरी फॉर दैट गाइस और आरएसजी ने जैसी डोमिनेशन दिखाई है चाइनीज़ मेटा को ऑब्वियसली वो जानते हैं और चाइनीज़ प्लेयर्स ऑब्वियसली मशहूर है पूरी दुनिया में ग्लोबली कि जैसे वो खेलते हैं अपने एग्रेशन की बेसिस के ऊपर अपनी गन पावर की बेसिस के ऊपर सो आई रियली वांट टू सी दैट इन फ्रॉम देम लेकिन अभी के लिए टॉप डैमेज डीलर्स हमारे सामने आ चुके हैं वीपीई ऑलरेडी 3604 का डैमेज रजिस्टर कर चुकी है बहुत अच्छा सामना किया गया यूएसजी की तरफ से 2455 का डैमेज रजिस्टर करने में कामयाब 8 किल्स कर लेकर जाते हैं लेकिन बाकी जो लॉबी है उसकी तरफ से कोई एक्सेप्शनली डैमेज डील नहीं किया गया लाते बिल्कुल सी बाकी लॉबी को मौका ही नहीं दिया गया डैमेज डील करने के लिए एसटी की तरफ से और यूएससी की तरफ से और वेम्पायर स्पोर्ट्स की तरफ से ही वो तमाम डैमेज जब वो होल्ड किया जाता है लेकिन देखिए आप कहीं ना कहीं जब वो 700 डैमेज भी एक अच्छा डैमेज है बेहतर डैमेज ज़रूर है अच्छा नहीं कहूँगा इसको मैं बीटीबी की तरफ से भी 800 डैमेज दिया जाता है जो कि बेहतर ज़रूर है बट आपको अगर आप किल्स का जितना नंबर अपने खाते में दर्ज करते हैं उसी हिसाब से आपका डैमेज भी बढ़ता हुआ नजर आता है ये बात तो सबको पता ही है लेकिन मौका नहीं दिया गया किल्स लेने का दिस इज़ द रीज़न वाई डैमेज भी इतना ज़्यादा नहीं है और रोजर के एरिया को एक टीम की तरफ से डोमिनेट करना हम पहली बार देख रहे हैं एक ऐसा रीजन जहाँ पर क्लस्टर बना होता है जहाँ पर डिफरेंट टीम्स डिफरेंट फाइट्स में एट द सेम टाइम जूझ रही होती हैं वहाँ पर एक ही टीम का डोमिनेट करना मुझे समझ नहीं आया लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस है और मैच स्टार्ट होने से पहले भी मैंने ये बात की थी कि कभी कभी दूसरी अटेम्प्ट वाला भी फेल हो जाता है और कभी कभी पहली अटेम्प्ट वाला भी टॉप कर जाता है तो यहाँ पर वैम्पायर स्पोर्ट्स ने पहली अटेम्प्ट में ही टॉप कर दिया और इस पर जो है वो उनको दाद मिलती रहेगी लेकिन अगला मैच मिरामर का मैच है एक्सटेंसिव मैप है उस मैप में ड्रॉप्स चेंज होंगे सर्कल चेंज होगा हर चीज़ बदलने वाली है लेकिन क्या पॉइंट टेबल पर टीम्स भी बदलेंगी इसका इंतज़ार आदि मैच के आगाज़ के साथ शुरू होगा और इख्तिताम के साथ ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल अलादीन और इस चीज़ का इंतज़ार तो हमें भी है आई रियली वांट टू सी केओस मैं केओस देखना चाहता हूँ और केओस में मैचेस में तो हो ही रहा है लेकिन लीडर बोर्ड के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले मैचेस के अंदर कोई ऐसा स्क्वाड हो जो कि टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के एटलीस्ट अगर उनको ओवरटेक नहीं कर पाता तो थोड़ा नज़दीक ज़रूर आ जाए ताकि कंपटीशन मज़ीद बढ़ाया जाए ऑब्वियसली सारे जितने व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो टीम है जिनको वो लाइक करते हैं पसंद करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करे ऑब्वियसली ऐसा होता हुआ भी नज़र आएगा एंड आई रियली प्रेफर दैट लेकिन कंपटीशन को मज़ीद एंड मेरा ख्याल है इनफैक्ट ये होना है अगले मैच के अंदर कि कोई और टीम अगले मैच के अंदर कम्प्लीटली डोमिनेशन दिखाएगी और वैम्पायर स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा बिल्कुल आदि लेकिन साथ साथ खबरें नजरात जितने भी लोग इस वक्त चैट में मौजूद हैं आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम अपनी टीम को सपोर्ट करने के साथ साथ आप हमारी जो काविश है जो कि पबजी मोबाइल की तरफ से की जाती है PMWI पबजी मोबाइल इन्विटेशनल की इनके जितने भी सोशल हैंडल्स हैं उनको फॉलो जरूर करें और साथ साथ एक वीडियो की तरफ चलते हैं I don't know how they got 11. वेलकम बैक खवातीन और साथ यहाँ पर जो है वो एक प्लेयर को हमने नाकाम कोशिशें करते हुए देखा किसी तरह से वो इस बॉल को जो है वो इस एक पॉकेट में जो वो डाल जरूर थे बट उनसे नहीं होता और खैर फिलहाल बात करते हैं आपसे हो जाता है अपने कंपटीशन की नहीं मुझसे भी नहीं होता मुझसे मेरा पेट नहीं संभाला जा रहा है कब से मुझे वो तंग कर रहे हैं आपको बार बार आके कौन है पेट मक्खी तो नहीं है मक्खी जिसे आपने हाथ हिलाया ठीक है सो गाइस थोड़ी सी रियलिटीज़ की तरफ वापस से आते हैं और ये शुगल जो है वो आप लोगों के साथ लगता रहेगा थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है कभी कभी तो उसको थोड़ा सा हम उसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर फेंकेंगे आप लोगों की आइसिंग ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे अक्सर औक़ात लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी आइसिंग टीम VP की तरफ से इस सारी लॉबी के ऊपर कर दी जा चुकी है वंस अगेन जो अल्फाज हैं वो ऑब्वियसली वैम्पायर स्पोर्ट्स का नाम ही लेंगे क्योंकि दिस वाज समथिंग क्वाइट गुड फ्रॉम देयर साइड लेकिन टीम स्टार्ट्स हमारे सामने आते हुए वेव 9-1 का डैमेज रिसीव्ड उसके मुकाबले में काफी कम है इनफैक्ट सारे ही प्लेयर्स का काफी कम है फ्लूक को आप देखें दैट वाजंट अ फ्लूक एक ग्रुप में आया भाई डैमेज देते हैं और रिसीव्ड में 173 सिर्फ ला दें
बिल्कुल, और किल्स भी देखें आप उनकी तरफ से एलिमिनेशंस भी 7 बटोरी जाती हैं, जहाँ सिर्फ 2 ही नॉक्स निकालते हुए नजर आया हमें। और वहीं पर आप देखें जस्टिफाई करते हुए इस वक्त नॉक्स को किल्स को नॉक्स के साथ नजर आएंगे हमें सिर्फ वेव, उसके अलावा बाकी तमाम प्लेयर्स ने इवन ड्रिवन प्रो ने भी काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अच्छे किल्स के साथ साथ नॉकआउट्स भी निकाले। लेकिन वहीं पर माइक को देखिए 5 किल्स निकाले लेकिन सिर्फ 3 ही नॉकआउट, और स्पेसिफिकली फ्लूक जिस तरह से उन्होंने जो बाकी फाइट्स थी उन पर नज़र डालते हुए थर्ड पार्टीज़ की हैं वो काफ़ी शानदार है। अपने टीममेट्स की जो नॉक्स है उनको कंफर्म किया गया, जिसकी वजह से डैमेज भी आप देखें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा है माइक के पास। तो माइक का वो रोल रहा है पूरी टीम में कि नॉकआउट जो प्लेयर्स हैं उनका इंस्टेंटली किल कंफर्म करना, और फ्लूक का ये रोल रहा है कि जहाँ पर 2 टीम्स आपस में फाइट कर रही हैं वहाँ पर उनके किल्स चुराना। और ये बात उनके जो स्टार्ट्स हमें वाज़ेह करते हुए नजर आएंगे। वेव की तरफ से एक डिस्ट्रक्टिव वेव फेंकी जाती है इस पूरे मैच में, 8 किल्स 8 एलिमिनेशन कंफर्म करते हुए नजर आते हैं। अगर एमवीपी की मैं बात करूँ आदि, तो मुझे लग रहा है कि सारे तीनों प्लेयर्स माइक, फ्लूक, वेव तीनों को ही एमवीपी बना देना चाहिए, बिकॉज तीनों की तरफ से ही बहुत शानदार खेला गया है। जी बिल्कुल, और तीनों के तीनों एमवीपी मेरे ख्याल से तो नहीं बन सकते, लेकिन ऑब्वियसली नॉकआउट्स की अगर हम बात Most करते हैं तो valuable सबसे ज़्यादा वेव के बैकपैक में जाते हैं नॉक्स, और एक किल ज़्यादा भी स्कोर करते हुए नज़र आते हैं, तो एक किल उन्होंने स्टील भी किया। और फ्लूक को अगर आप देखें तो वो 2 नॉक्स रजिस्टर उन्होंने किए हैं और 7 एलिमिनेशंस उन्होंने स्कोर किए हैं। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर इनके सारों के सारे जो प्लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं मुलव्वस ज़रूर थे। आपका पेट आपको फिर से तंग कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं अलादीन, हो जाता है ऐसे, हम साउथ एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑब्वियसली ये हर घर की कहानी है। लेकिन अभी के लिए कुछ प्लेयर्स ऑन स्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि वैम्पायर ई स्पोर्ट्स ने हमारे साथ आखिर क्या कर दिया है और हमने ऐसी क्या गलती की इस मैच के अंदर, No, obviously fall, उन गलतियों को awesome. सुधारना Thank you, पड़ेगा। thank you, bro. व्हाट डू यू थिंक कि ओवरऑल वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के इस मैच में परफॉर्मेंस के बाद कितनी स्ट्रैटेजीज चेंज होंगी? जैसे हमने इस मैच में देखा कि टीम्स ज़्यादा एग्रेस नहीं कर रही थी अलादीन, और जो रशेस किए गए और वो मेरे ख्याल से डिफेंसिव तौर के ऊपर किए गए कि कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं बचा था। सो व्हाट डू यू बिलीव? लेकिन उससे पहले इस सवाल को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हम डोनट्स यूएसजी की थोड़ी सी सोलो परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर जब जिस तरह से आपने एक सवाल किया उस पर उसके जवाब से पर जाने से पहले मैं अगर बात करूँ डोनेट की तरफ से जिस तरह से खेला गया, डैमेज आप देखें ओजी सैन की तरफ से काफ़ी दिया गया, नाउज तो भी काफ़ी डैमेज देते हुए नजर आते हैं। किल्स में थोड़ा सा पीछे ज़रूर है, मिसल की तरफ से भी यहाँ पर जब डैमेज काफ़ी अच्छा दिया कि किल्स नहीं कन्फर्म कर पाए, और वहीं पर ओमिकॉन ठीक खेले, अच्छा खेले, दो नॉकआउट यहाँ पर सबके तरफ से निकाले गए, 1, 2, 2 और 3 किल्स निकालते हुए हमें नजर आए ओमिकॉन, मिसल, नाउदो और ओजी सैन। लेकिन सवाल आपने किया था क्या स्ट्रैटेजी चेंज होगी? मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होने वाली। जिस चीज़ को ये टीम्स मास्टर कर चुकी हैं अपने रीजन में, जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, उसके अलावा जो होमवर्क किया उसके बाद अपनी प्लेयर टीम्स के ऊपर फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसको लेकर ही ये टीम चलेंगी। जो इनका माइंडसेट था वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी बदलने ना बदलने की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे साथ जो कास्टर थे वो बदल चुके हैं और अब आ चुके हैं हमारे साथ एशन को हम वेलकम ज़रूर करेंगे जैसे हम कैमरे की तरफ जाते हैं, और उनसे भी पूछेंगे कि टीम डोनट की तरफ से जो खेला गया उस पर वो क्या कहना चाहते हैं और टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के इस मैच में हाइप क्रिएट करने के लिए एशन। वेलकम। थैंक यू सो मच वंस अगेन अलादीन। और बेहतरीन मैच हमारे सामने जो है वो पूरा होता हुआ पहला मैच वर्ल्ड इन्विटेशनल का, जिसका इंतज़ार काफ़ी महीनों से तमाम जो हमारे देखने वाले हैं जहाँ से भी हों, जो कि ज़ुबान को समझते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैच था। बट अगेन आई वुड से कि वैम्पायर ई स्पोर्ट्स ने ये चीज़ दिखाई है कि कितना बेहतरीन एक सिस्टम है थाईलैंड के जो लोकल सीन है उसके ऊपर, और पूरी तरह से ऐसे लग रहा था कि दे वर प्लेइंग लाइक ए क्लासिक और स्क्रिम्स मैच जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया। एंड इवन अगर यूएसजी के प्लेयर उनको बैकस्टैप ना करते, हो सकते हम यहाँ पर 26 किल्स का ये चिकन डिनर देखते अलादीन। बिल्कुल, अगर उनको बैक स्टैप ना पड़ता, 2 किल्स वहाँ पर कंफर्म किए गए बैक स्टैप के साथ, जो जोन के बाहर प्लेयर मौजूद थे उनकी तरफ से, अगर वो बैक स्टैप ना पड़ता तो शायद मजीद किल वो कंफर्म करते, लेकिन बचे हुए जितने भी प्लेयर्स थे मेरे ख्याल से उनको इन्होंने एलिमिनेट किया, सो ज़्यादा फर्क भी शायद ना पड़ता। लेकिन आप देखिए कि वैम्पायर स्पोर्ट्स का एंड तक जो मोमेंटम आज सोल खेल रहे हैं भाई, मैच कर पाते हैं। नेक्स्ट मिरामार मैच सोल विल विन विनर चिकन डिनर। सवाल है जो आदि बार-बार मुझसे कह रहे थे कि भी नेक्स्ट मैच में क्या इसी तरह से टीम खेलेगी या कोई और टीम इनकी तरह खेलेगी, इस बारे में क्या कहना? सब्सक्राइब करो भाई, फटाफट सब्सक्राइब करो। प्रोफेशनली वैम्पायर ई स्पोर्ट्स जिस तरह का उनका कोचिंग स्टाफ है, जिस तरह से उन्होंने इस पहले मैच के अंदर अपने आप को दिखाया है ऑन स्टेज, एज यू गाइस आल्सो मेंशन के
एक स्टेज का जो है वो आपके ऊपर प्रेशर होता है, ऑडियंस का प्रेशर होता है, यू हैव यू नो कि आपके अराउंड इतना कैमरा क्रू है, आपकी एक बहुत बड़ा रीजन बैक होम आपको देख रहा है, आपकी तरफ उनकी नज़रें, सो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए जिस तरह से वेम्पायर स्पोर्ट्स ने इस मैच के अंदर मैं समझता हूँ कि खेला है, वेम्पायर स्पोर्ट्स अभी तक के लिए एक ऐसा थ्रेट जो है पोज कर रहे हैं तमाम टीम्स को लॉबी के अंदर, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल से अभी तक के लिए सोचा नहीं होगा। बट अगेन आई वुड से वेम्पायर स्पोर्ट्स अगर इस मैच के अंदर भी इसका कुछ आधा भी खेल लेते हैं, लाइक अराउंड 10 से 12 किल्स करके जो है वो सेकंड या थर्ड स्पॉट भी सिक्योर कर लेते हैं, आज का दिन, कल का दिन टोटली जो है वो वेम्पायर स्पोर्ट्स डोमिनेट करती हुई नजर आएगी हमें। एक मैच में 40 पॉइंट्स लेना कोई आम बात नहीं होती, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स उनके दस्ते बटोरे गए हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट टीम सोल। व्हाट वेंट रॉन्ग? टीम सोल को हमने देखा कि एक फाइट में जहां पर उनके प्लेयर जो रोटेशन करते हुए जूझते हुए नजर आए, हमने हेक्टर को शायद सबसे पहले नॉक होते हुए देखा, उसके बाद 3 प्लेयर्स मौजूद थे बट 2 एक ही कंपाउंड में थे, एक प्लेयर जो थे वो काफ़ी दूर थे। वहाँ पर वो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन था प्लेयर्स का, या फिर कह लें कि एक वो जो 2 प्लेयर्स को जगह छोड़ना, एक प्लेयर को डिफरेंट एंगल पर छोड़ना, वो भी काम नहीं करता उनके लिए। स्टी रियलाइज़ करते कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 से ज़्यादा प्लेयर्स की नहीं है, वो इंस्टेंटली पुश करते हैं और वहां पर उनको एलिमिनेट किया जाता है। डू यू थिंक इट वाज ऑन पर्पस या फिर मजबूर हो जाती है टीम सोल के वो अपने प्लेयर्स को इस तरह से डिवाइड करके खेलती भी नजर आए? आई वुड से सोल थोड़ा सा मिस रीड कर जाती है उस सारी सिचुएशन को, जहाँ पर हम पहले भी बात करते हैं कि 3 से 4थे सर्कल इंडिया तक ओपी अगर आप अपनी टीम को नेक्स्ट मिरामर इंडिया विल विन, सोल विल विन, प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस है, आप किल्स ले लेंगे, लेकिन जिस तरह की वो सिचुएशन थी जहाँ पर यू नो के अपर हाइट एंगल से भी, सराउंडिंग कंपाउंड से भी आपको पुश आ सकता है, बेटर स्ट्रेटजी वहाँ पर यही थी कि किसी ना किसी तरह से अपने प्लेयर्स को रिट्रीट करवा के रीग्रुप किया जाए उसी सेंट्रल कंपाउंड के अंदर जो कि सिटी के अंदर मौजूद था। हम साइट्स की बात नहीं कर रहे जहाँ पर आई बिलीव ओमेगा मौजूद थे, अगर वहाँ पर पूरी टीम उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर होल्ड करती, आई वुड से ईजी किल्स वहाँ पर उनको मिलते अपनी सराउंडिंग से, स्पेशली बॉक्स गेमिंग जो कि बाद में उसी कंपाउंड के ऊपर हमें आती भी नजर आई, ये सारे किल्स उनके हो सकते थे। बॉक्स गेमिंग जो है थोड़ा सा जो है वो सैम दौरवा बहुत स्लो स्पैम इंडिया ओपी ब्रो मूव करेंगे यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ ई स्पोर्ट्स पबजी मोबाइल के इस मैसेज की तरफ, सो कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं इस मैसेज के बाद। सोल नेक्स्ट चिकन डिनर सोल। The exciting details about 2022 PUBG Mobile Global Championship and more. Stay tuned until the end. Okay, firstly, I'm happy to announce that the 2022 PMGC Grand Finals will be a major offline First event game Team Soul, in Indonesia Ash5 in 3 kills. January. PMGC League will begin in early November and it will run for 4 Ash5 bro, weeks Mohammad Afan. to determine the teams heading to Indonesia to battle for the crown as the best PUBG Mobile team in the world. An incredible 48 teams, the best of best teams from each region qualified through the year. The most to ever in our offline event will join to PMGC League. The top 13 teams will take their place in grand finals with 3 direct invites. Kalan PUBG lovers India OP, yes bro India OP. As well as PMWI, Sony's Xperia will be the official smartphone partner for 2022 PMGC, ensuring all players are able to perform at the highest level on the biggest stage. Baba drop clash coming And bro. No, that's not all don't worry bro, yet. Soul will win. India I'm जीतेंगे. excited to talk to you about a new competition, PUBG Mobile Regional कितने बजे Clash, मैच स्टार्ट हो गया beginning यार? I next think month. 5 minutes more. The PMRC is focusing on pitting different regions against each other, beginning with PMPL Southeast Asia versus PEL. You never want to miss it, so please follow us from September 22nd to 25th. Okay, it's a time to go back to PMWI. On the circle! Thank you! Home Bhagwa Box Gaming and Soul drop clash. Welcome back. Welcome Don't back. Don't worry bro, Soul will win.
अब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप यही करेंगे। सोल टोटल 9 पॉइंट फ्लैश 5 ओवरऑल। अगर आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं तो आपको शायद लगेगा कि कुछ नया है, बट ऐसा हमेशा से ऐसे करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम आपने एक अनाउंसमेंट सुनी, जिस अनाउंसमेंट के बाद आपको पता लग गया होगा कि तमाम जितने भी प्रो लीग्स हैं, रीजनल प्रो लीग्स हैं, वहाँ से टीम्स आएंगी इस बार पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप में। रीजनल प्रो लीग जिस तरह से पाकिस्तान की PMPL होती है, इंडिया में BGMS होता है, या इस तरह से कोई भी बड़ा टूर्नामेंट, वहाँ से एक टीम लाजमी पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगी। सो इट मींस पाकिस्तान से भी एक टीम का चांस है, इंडिया से भी एक टीम का चांस है। अभिषेक इंडिया ओपीएस ब्रो, इंडिया ओपी को उठाकर यहाँ पर डाला जरूर जाएगा इन पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप। इसके अलावा भी काफ़ी रीजन्स होंगे जहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 से ज़्यादा टीम्स भी आ सकती हैं एशन। लेकिन कितना एक्साइटेड आपको ये अनाउंसमेंट करी है? बिल्कुल, ये चीज़ जो है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे गेट्स ओपन करेगी उन तमाम टैलेंट्स के लिए, उन तमाम जो है वो प्लेयर्स के लिए, प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, जो कि एक ना एक दफ़ा पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप के उस स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं। बिकॉज अपने रीजन की एक बहुत बड़ी प्राइड रहती है किसी भी टीम के लिए ग्लोबल चैंपियनशिप के अंदर अपने रीजन को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन तमाम फैंस के लिए जो अपनी टीम को काफ़ी अरसे से देखना चाहते हैं इस बड़े स्टेज के ऊपर। बट हियर वी गो, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, हमारे पास वो स्टेज आ चुका है, एंड ऑल थैंक्स टू पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स। जी हाँ, पबजी मोबाइल का शुक्रिया कि वो स्टेज हमारे तक लाने के लिए। लेकिन देखें तो प्लेयर हमारे सामने तैयार हो चुके हैं, प्लेयर्स का कैम हम देख रहे हैं। नेक्स्ट मैच के लिए लॉबी में सब बैठे हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है बॉक्स गेमिंग फॉर श्योर एज ब्रो। ऑडियंस भी हमें नजर आ रही है जो कि जिनमें मोस्टली हमें शायद गॉब्लिन प्लेयर्स हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, बिकम लाइक गॉब्लिन, हमें बाकी मेंबर्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट टीम्स के। तो इनकी तरफ से जो है वो लाइव विटनेस किया जा रहा है ऐसा इस सारे एक्शन को। PMWI पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल $3 लाख, 3 लाख डॉलर इसका जो है वो प्राइस, 3 लाख डॉलर नहीं सॉरी $3 मिलियन US का जो वो प्राइस पूल है। मैंने प्राइस पूल से वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जिसमें से वॉच पार्टी पे भी डिवाइड होगा ये। उसके अलावा वीक 1 और वीक 2 के अंदर डिवाइड होगा। बहुत सारे डिफरेंट टाइटल्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। पहले सिर्फ MVP होता था, इस बार गनस्लिंगर, मेडिक, फील्ड मेडिक, इसके अलावा बहुत सारे और भी आपको जो है वो और भी टाइटल्स मिलने वाले हैं। लेकिन मेन टूर्नामेंट का जो वो Day 1 है एसन, और सेकेंड मैच के आगाज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। टीम्स तैयार हो चुकी हैं। आपसे प्रेडिक्ट ज़रूर मैं करवाना चाहूँगा, आपके नज़दीक नेक्स्ट में कौन सी वो एक टीम है जो कि आपको लगता है कि परफॉर्मेंस दिखाने वाली है? मैं सिंपली एक बात ये कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे जीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए इस गेम की, इस गेम के अंदर खेलने वाले प्रोफेशनल प्लेयर्स की। इट डजंट मैटर कि कौन सी टीम PMWI के स्टेज को जीत कर जाती है, बट सबसे ज़्यादा चीज़ इंग्लिश में कास्टिंग स्ट्रीम बहुत बेकार है भाई, जो कि इस स्टेज के ऊपर खेलेंगे, उसके बाद वापस जब अपने रीजन में जाएंगे अपनी गलतियों के ऊपर वर्क करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे बेहतर से बेहतरीन हमें ई स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। बट पर्टिकुलरली अगर हम किसी टीम की बात करें, दिल तो हमारा यही कह रहा है कि हमारे रीजन से कोई ना कोई टीम जीते। से सोल को 10 पॉइंट निकल चाहिए जब ट्रॉफी इंडिया में आएगा। सो साउथ एशिया का ये प्राइड 10 पॉइंट नहीं है अब आज मैं अब मैच सोल विल मेक चिकन डिनर करते हुए आई वुड से कि साउथ एशिया से कोई टीम लेकर जानी चाहिए। दे हैव कंसिस्टेंट गेम प्ले। फेयर कंपटीशन वही है जहां पर जो सबसे बेहतरीन खेलता है वही जीत कर जाए उस कंपटीशन को या उस मैच को। बट काफी एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है अलादीन, और हमारी गॉब्लिन शोस हु इज इंडिया गॉब्लिन मोड एक्टिव बढ़ाते हुए जाए फर्दर जो है वो आपके लिए एक MVP और व्हाट जोश और वलवला इस आवाज़ के ज़रिए जो है वो बनाते हुए जाएं, आपके लिए इस सारे एक्सपीरियंस को एक्साइटिंग बनाएं। सो मेक श्योर यू स्टे विद अस एंड एट द सेम टाइम अपनी जो फेवरेट टीम है उसको सपोर्ट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बिल्कुल सही। और आपके सामने इस वक्त ऑलरेडी स्पोर्ट्स मौजूद है STE, उसके साथ निगमा गैलेक्सी को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निगमा गैलेक्सी की तरफ से लास्ट मैच में जिस तरह से मैं कहूँगा एक बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई गई, अब वो खुद भी चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से उनके फैंस दुआएं कर रहे हों कि किसी तरह से वो अगले मैच में जो परफॉर्म करें और एक कमबैक दिखाया जाए। ख़वातीन इस वक्त मैच आपके सामने आप देख सकते हैं एक्शन के फ़ोन पर कि जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और कुछ ही सेकंड्स में हम जाएंगे टॉप के फ़ोन पर। आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स पे हम जाएंगे और देखेंगे एक्शन को विटनेस करेंगे इस मैच के अंदर। 6 मैचेस ब्रो, लव यू सोल। गॉडल नहीं है क्या इस टूर्नामेंट में? नहीं है भाई, एनीवन प्लीज टेल मी भाई। 76 वो सेकेंडरी टीम है भाई, दूसरी लाइन में। आपको याद होगा कि ग्लोबल चैंपियनशिप में बड़ा शानदार खेला था इन्होंने, और जो ग्लोबल चैंपियनशिप की जो स्टार्ट के जो मैचेस थे, लीग मैचेस थे, वहाँ पर ये टीम बहुत शानदार तरीके से डोमिनेट करती हुई नजर आई थी।
बिल्कुल अगेन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि वैम्पायर चलो ई-स्पोर्ट्स मैच का स्टार्ट हो पहले रहा मैच है। के अंदर इस तरह से जो है वो स्पैम परफॉर्म करना इंडिया ओपी मुझे थोड़ा सोल सा डरा भी रहा है कि कहीं वो अपना मोमेंटम ना खो दें या फिर टीम्स जो कि उनके पहले मैच की स्ट्रैटेजी उनकी जो फाइट लेने का तरीका है अगर उसको मैं समझता हूँ कि डिबंक करने में कामयाब हो जाती हैं वहाँ पर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी मसला होगा बिकॉज़ जैसे ही आप टॉप पे आते हैं आप अपनी बैक के ऊपर एक टारगेट पेंट कर देते हैं जिसके लिए पूरी की पूरी लॉबी ये 18 की 18 टीम्स जो है वो कोशिश 6 करती मैच हुई में नजर टोटल आएंगी 90 पॉइंट कि वनडे सबसे मज़ा पहले आएगा आपको भाई। जो हे है वो भाई आपके मज़ा आ मोमेंटम गया को 90 तोड़ा पॉइंट्स जाए आए तो। बिकॉज़ अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है कि दे विल चीज़ मेक मुश्किल खड़ी कर देगी बाकी टीम्स के लिए और जो फेयर चांस है उनका इस कंपटीशन के अंदर फर्दर जीतने का वो कम कर देगी लेकिन दोस्तों मेरा मार के खुश्क मैदानों की तरफ हम मूव करने वाले हैं इस साउथ अमेरिकन डेजर्ट की मैच तरफ हम स्टार्ट मूव हो रहा करेंगे भाई। जो कि इंस्पायर्ड है आई मिस से फ्रॉम द साउथ अमेरिकन डेजर्ट और बहुत सारे नाम भी एरियाज़ के जो हैं वो यहाँ पर आपको स्पेनिश में देखने को मिलते हैं बट here we go मूव करेंगे टू द मैप ऑफ लॉस लियोनेस पेकाओ एंड सैन मार्टिन और जो हमारा जहाज़ है वो उड़ने वाला है वी विल बी मूविंग टुवर्ड मिरामार एक और एक्साइटिंग मैच शुरू होने वाला है लादे जी हाँ, आज के दिन का दूसरा इंडिया मैच ओपी और इसका एस ब्रो आगाज इंडिया होता हुआ ओपी। नजर आएगा। क्या फिर से अर्ली फाइट्स लेती हुई टीम्स नजर आने वाली हैं? क्या फिर से वो टीम्स जो कि सबसे पहले एलिमिनेट हुई थी जिसमें टीम 56 स्टेज का नाम आता है, निगमा गैलेक्सी का नाम आता है, क्या फिर से वो टीम अर्ली एलिमिनेट होती हुई नजर आती है या फिर इस बार उनकी तरफ से थोड़ा सा सबर का खेला जाएगा? हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपीरिया सोनी एक्सपीरिया की तरफ से जब वो तावन किया गया है इस पूरे इवेंट के साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल जहाज उड़ान भर चुका है, प्लेयर्स डिसाइड कर चुके हैं कहाँ उनको लैंड करना है। स्पाइट पथ के हिसाब से क्या उनको अपने ड्रॉप स्पॉट्स को चेंज करना है या फिर वहीं पर ड्रॉप लेना है जहाँ पर वो सोच कर आए थे, जहाँ पर वो माइंडसेट अपना बना कर आए थे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इस तरह की मिरामर जैसे बड़े मैप में एक से ज़्यादा ड्रॉप्स रखे होते हैं आपने, लेकिन तमाम टीम्स यहाँ होमवर्क कर कर आई हैं, उनको पता है कि यहाँ कौन कौन से एरियाज जो वो खाली रहते हैं और कौन कौन से एरियाज जो वो किसी और टीम के सेकंड ड्रॉप हो सकते हैं और वो फ्लाइट पाथ चेंज करने की वजह से वहाँ पर लैंड कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हम हर टीम की तरफ से अर्ली फाइट को अवॉइड किया जाएगा। कोई भी टीम किसी भी बड़े से बड़े स्टेज में अर्ली फाइट को एक कहने की एक प्रायोरिटी नहीं रखती, हमेशा उसकी तरफ से अवॉइड ही किया जाता है। पहली टीम जो कदम जमाती नजर आएगी इस वक्त इस मिरामर की सरजमीन पर वो है टीम VGS। लास्ट मैच काफ़ी बुरा रहा इस टीम का, अब इस टीम की तरफ से जो है कमबैक करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सोल वर्सेस टीम बॉक्स पिकाओ के एरिया में मौजूद है। यहाँ एक फाइट चलो गाइस सोल है, टीम बॉक्स के प्लेयर्स इस वक्त एक डिस्पोजन में मौजूद और टीम सोल के प्लेयर काफ़ी किसी के करीब मौजूद है, लेकिन बॉक्स के सोल्स यहाँ हमारे सामने मौजूद है। एशन एक अर्ली फाइट जिसकी हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, जिसकी हम उम्मीद तो नहीं लगा रहे थे, लेकिन हमारे सामने बनती भी नजर आ रही है। बिल्कुल लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सोल के ओमेगा भी यहाँ पर मैं समझता हूँ सबसे डेडलीस्ट वेपन ऑन दिस मैप UMP 45 जो है वो लेने में कामयाब हो चुके हैं। सोल का इस तरह से क्लोज रहना उनको पहली कामयाबी दिला सकता है इस पूरी फाइट के अंदर। बेंसू को साइडलाइन किया जा सकता है पूरी टीम से, बाकी टीम सिटी के अंदर उतरती है कसिनो साइड के ऊपर। टीम सोल जो है वो रेड बिल्डिंग के अंदर सी टीम सोल जो है उसका कंट्रोल पूरी तरह से रहने वाला है। नामत से कि सोल यहाँ पर एक सरप्राइज दे सकती है बॉक्स गेमिंग को। बॉक्स गेमिंग जिस तरह से पिछले मैच के अंदर खेलती है उनका मोमेंटम यहाँ पर टूट सकता है इस इनिशियल फाइट के अंदर, लेकिन here we go कसिनो के अंदर आ चुके हैं तरिस्मा एंड दाजूवू दूसरी तरफ रहने वाले हैं टुवर्ड द अपार्टमेंट साइड एंड लेकिन सोल की फॉर्मेशन अभी तक के लिए बेहतरीन नज़र आ रही है। सोल यहाँ पर एक अर्ली फ्रैग जनरेट करने में कामयाब हो सकती है। अलादीन बिल्कुल, फिलहाल फॉर्मेशन दोनों ही टीम्स की बेहतर है क्योंकि आप देखेंगे टीम सोल जहाँ पर उनके 3 प्लेयर्स एक जगह पर है, एक प्लेयर थोड़ा सा उनसे दूर है, वहीं पर टीम बॉक्स के 2 प्लेयर्स 2v2 स्प्लिट में मौजूद हैं। बॉक्स के थ्रिस्मी और बेंसू अगर वो ओमेगा की तरफ पुश करते हैं तो थ्रिस्मी को यहाँ पर जब इस वक्त रोड क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। गॉब्लिन यहाँ पर आंखें टिकाए बैठे इंतजार करें विद टेकिंग मेनी चांस, किसी भी तरह से प्लेयर ओपन में आएगा तो उसको एलिमिनेट करके लॉबी भेजा जाए। थ्रिस्मी भी जानते हैं कि उनको इस वक्त रोड क्रॉस करने का मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं और वो जो एक प्लेयर डिस्पर्जन की वजह से किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम में है, वहीं पर एडवांटेज भी ये है कि टीम सोल कवर देने के लिए वहाँ मौजूद है। सो पहला ब्लड मेरे ख्याल से अगले कुछ मिनट्स में नहीं गिरने वाला। नॉक निकलता भी है तो कंफर्मेशन बहुत मुश्किल हो सकती है। हाँ, अगर टीम बॉक्स के प्लेयर गलती करते हैं किसी ना किसी तरह से सोल के प्लेयर को एक रोटेशन, क्योंकि सोल के पास हाइट एरिया बहुत ज़्यादा है और अगर ये गलती हो सकती है अगर यहाँ पर ओपन में आया जाता है और ये सोचा जाता है कि एक लॉन्गर रोटेशन वगैरह मारते सोल के पीछे देखो तो भाई, बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि सोल के प्लेयर्स आप देखेंगे जिस हाइट पर मौजूद हैं वो सब देख रहे हैं, ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाले की नज़रें सब पर हैं और जैसे ही कोई प्लेयर ओपन में आएगा ऑब्वियसली ऊपर वाला जब स्प्रे देकर उनको एलिमिनेट करता हुआ नजर आता है।
बिल्कुल गॉब्लिन को यहाँ पर कुछ थोड़ा सा स्प्रे दिया जाता है बॉक्स के प्लेयर की तरफ से, बट अगेन दे नो कि उनकी विसिनिटी के अंदर थ्रेट मौजूद है और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टीम सोल अपने आप को इसी तरह से मनूवर करिए, बट अक्षत जो है वो एक रॉन्ग साइड के ऊपर टीपी लेते हुए हमें थोड़ी देर पहले नजर आए, बट हेवी गो उनका चेहरा जो है अब थ्रेट की तरफ वापस होता हुआ टेंशन जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है सोल ई स्पोर्ट्स एंड दे विल मेक श्योर के यहाँ पर उनकी तरफ से बॉक्स के ऊपर पहला नॉक निकाला जाए। जंप एंड देन पंच इसको भरपूर तरीके से यूज़ करते हुए अक्षत आहिस्ता आहिस्ता क्लोज इन करेंगे। ही हैज़ नो आइडिया बेंसू सामने ही रूम के अंदर प्रोन डाउन है और इस तरह का एंगल के ऊपर मौजूद है जहां पर एकदम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अक्षत में और नॉक भी हो सकते हैं बेंसू के हाथों। बेंसू के पास UMP45 रहने वाली है जो कि अगेन क्लोज रेंज के अंदर डेडली साबित हो सकती है फॉर अक्षत। बट सोल लेट्स सी क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर उनकी तरफ से डिप्लॉय की जाती है। सोल के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग करते हुए साथ ही यहाँ पर आई बिलीव पुश किया जाएगा। बेंसू की लोकेशन अभी तक अलादीन आई बिलीव टीम को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इतने क्लोज एक प्लेयर उनके मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन हेक्टर जहाँ पे मौजूद है, हेक्टर को अगर निगलेक्ट किया जाता है, सोचा जाता है कि शायद टीम सोल जो है वो इस मेन बिल्डिंग को अबैंडन कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी जिसका खमियाजा भुगतना उनको प्लेयर्स की एलिमिनेशन के साथ साथ टीम्स की एलिमिनेशन की सूरत में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे टीम सोल ने जो डिस्पोजिशन बनाया वो इसी वजह से बनाया ताकि एक प्लेयर एक डिफरेंट एंगल पर हो और बाकी 3 प्लेयर जो अपने ऊपर नजरें टिकाकर अपने ऊपर सारा फोकस करवाकर उस प्लेयर को मौका दें कि वो एक डिफरेंट एंगल से नॉक्स निकाले। इससे पहले भी अगर आपको लास्ट मैच की फाइट याद हो जहाँ पर आई बिलीव 4 राइवल की फाइट हमने देखी थी जहाँ पर उनके एक प्लेयर जो है वो एक डिफरेंट एंगल पे मौजूद थे और वहाँ से वो 2 नॉक्स निकालते हुए नजर आते हैं। तो टीम सोल भी यही काम कर रही है। लुक एट दिस, तीनों प्लेयर्स एक दूसरे काफी क्लोज मौजूद, लेकिन किल फीड में टीम बैक टू बैक के प्लेयर्स नॉकडाउन होते हुए टीम टोंग जियाबाओ के हाथों वेस्टर्न यूरोप से आई हुई टीम यहाँ कुछ कमाल करती हुई नजर आएगी। हमें पहला नॉक निकाला जाता है और रोटेशन में इस प्लेयर को पकड़कर सीधा लॉबी भेजा जाता है। टिंग की तरफ से पहली एलिमिनेशन ली जा चुकी है अपने इस सेकेंड मैप की। NTJ भी अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइज कर सकती है तमाम उन मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को जो कि इनके ऑपोजिशन में खेल रहे होंगे। गॉब्लिन को यहाँ पर डैमेज पड़ता हुआ ब्रेक MVP की तरफ से ब्रेक अगेन यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आएंगे। पेंसू अपनी पोजीशन से मूव आउट हो चुके हैं। ही इज टेकिंग TPP ऑन सोल प्लेयर, उनकी बैक पूरी तरह से कवर्ड है। त्रिस्मा उनको उस साइड से इस सारी सिचुएशन के अंदर कवर फाइट देते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन बेंसू ऑन अदर साइड मूव करेंगे एंड पॉसिबली अपनी पोजीशन भी दे चुके हैं। सोल चुकन्ना हो चुकी है मूव आउट करते हुए उस सारी लोकेशन से और एक ऑफ एंगल लेने की कोशिश टीम बॉक्स के प्लेयर की तरफ से की जाएगी। आई बिलीव एक स्टैंड ऑफ जो है वो बढ़ता हुआ जिस तरह से नजर आ रहा है टीम सोल और टीम यहाँ पर बॉक्स के दरमियान उस तरह से फाइट बनती हुई हमें नजर नहीं आने वाली हालात। लेकिन ओमेगा जिस तरफ गए हैं वो एक गलती हो सकती है। बिल्कुल उनके सामने बेंसू मौजूद है, बेंसू की पोजीशन का अंदाजा नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी ओमेगा को। ओमेगा यहाँ नॉकडाउन हो सकते हैं और पहला ब्लड यहाँ पर जब वो इस वक्त गिरता हुआ नजर आ सकता है। बेंसू यहाँ पर बाहर आते हैं, नॉक निकाला जाता है। इंस्टेंट कंफर्मेशन भी दी जाएगी टीम बॉक्स गेमिंग के हाथों। यहाँ सोल के ऊपर पहला किल कंफर्म किया जाता है। अबैंडन करना उस एरिया को अच्छा नहीं रहता। डिफरेंट एंगल से बेंसू आते हैं और उनकी तरफ से नॉक निकाला जाता है और अब यहाँ पर टीम सोल खमियाजा भुगतती हुई साथ ही साथ वल्नरेबल भी थोड़ी हो जाएगी क्योंकि 3v4 सिचुएशन हो चुका है। पहला किल कंफर्म करने वाली टीम ऑब्वियसली एडवांटेज में आ जाती है, लेकिन ओवर एग्रेसिव नहीं होना। एंड व्हाट जस्ट हैपेंड, थर्ड पार्टी फ्रॉम अ डिफरेंट रेंज। बिल्कुल बहुत ही एक लंबे जो है वो डिस्टेंस से मॉर्फ की तरफ से यहाँ पर थर्ड पार्टी होती है। ब्रेक MVP पुशन करते हुए सामने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ 1v2 सिचुएशन है। वी गो डैमेज काफी ज्यादा दिया जाता है हेक्टर, लेकिन हेक्टर यहाँ पर गिर जाएंगे। गॉब्लिन को भी नॉक कर दिया जाएगा ब्रेक MVP की तरफ से। एंड सोल के आखिरी प्लेयर ऑन आवर स्क्रीन दैट विल बी अक्षत। अब उससे आखिरी 2 प्लेयर्स अक्षत और हेक्टर जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। इट्स अ 2v4 सिचुएशन, लेकिन दूसरी तरफ बॉक्स भी अपना एक प्लेयर टीम RSG टीम मॉर्फ के हाथों लूज करती हुई नजर आती है। इट्स अगेन 3v2 सिचुएशन। बेंसू इज लो ऑन HP। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम सोल के पास एक हाइट एंगल भी मौजूद है हेक्टर की सूरत में और क्लोज के अंदर अक्षत मौजूद है जो कि सरप्राइज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अक्षत को त्रिस्मा की तरफ से नॉक किया जा चुका है क्रॉसिंग के ऊपर। टीम सोल के हेक्टर यहाँ पर सर्वाइव करते हुए अपनी टीम की तरफ से एंड 3 किल्स टीम बॉक्स गेमिंग के बैकपैक में जाते हुए, लेकिन क्लियर कट जो उनके पास मैन एडवांटेज था वो थर्ड पार्टी में ये टीम लूज कर जाती है। लेकिन सोल के हेक्टर लेट्स सी व्हाट्स देयर बैकअप प्लान। आई बिलीव यहाँ से रिट्रीट करते हुए जाएंगे एंड ही वोंट बी टेकिंग द फाइट एनी फर्दर और सोल ई स्पोर्ट्स डाउन टू लास्ट मैन स्टैंडिंग होती हुई नजर आती है। टॉप 5 के अंदर ये टीम मौजूद है अभी तक के लिए अलादीन विद देयर 10 पॉइंट्स फ्रॉम प्रीवियस मैच, बट इस मैच के अंदर स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा शेकी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है टीम सोल का।
बिल्कुल उसे काफ़ी शेकी स्टार्ट है क्योंकि 3 प्लेयर्स गवाए जा चुके हैं उनकी तरफ से। आखिरी प्लेयर हेक्टर मौजूद हैं। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि उनकी तरफ से 3 प्लेयर्स गवाए गए थे, बट वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी जहाँ पर आप 5वें सर्कल में अपने प्लेयर्स गवाते हो। यहाँ पर अभी पहला सर्कल क्लोजिंग नहीं हुआ। अब देखिए आप जाकर जो है सेकंड सर्कल बनेगा ज़रूर और वहाँ पर आपने अपने प्लेयर्स गवा दिए, वो भी 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स गवा दिए अपने। तो टीम सोल एक बार फिर से एक बुरे मैच की तरफ जा ज़रूर रही है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 6 सेंटर में मौजूद है टीम B2B। बैक टू बैक के प्लेयर्स काफ़ी क्लोज हैं, वो भी एक फाइट के अंदर आ सकते हैं। स्क्राई हमें उनके आसपास नजर आ रहे हैं, स्क्यार उनके आसपास नजर आ रही है, टीम टॉन के अबाउ भी उनके आसपास नजर आ रही है। 3 टीम्स यहाँ पर एक फाइट में जूझती हुई नजर आ सकती हैं ऐसे में। बिल्कुल फाइट के अंदर जूझती नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ किल फीड के अंदर टीम 52x ई स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर अपना एक प्लेयर लूज़ करती हुई डाउन टू 3 मैन हो चुकी है और वेस्टर्न साइड के ऊपर ये टीम मौजूद है अगले सर्कल के। निग्मा गैलेक्सी के साथ एक इनिशियल फाइट के अंदर प्लेयर लूज़ करना, एडवांटेज लूज़ कर चुकी है 52 ई स्पोर्ट्स अपना इस मैच के अंदर भी। सो एक अगेन मैं कहूँगा 2 टीम्स का फ्रॉम द साउथ एशिया रीजन एक शेकी स्टार्ट रहता है। एंड अगेन जिस तरह से आपने मेंशन किया कि टीम सोल उनका स्टार्ट काफ़ी बेहतरीन था इस पूरे कॉम्पिटिशन का, लेकिन सेकेंड मैच के अंदर अगेन इट्स पार्ट ऑफ द गेम और अगर यहाँ पर फाइट को थोड़ा डिले किया जाता पॉसिबली हो सकता था कि हेक्टर यहाँ पर एक नॉक निकालते और टीम बॉक्स जो कि पहले ही थर्ड पार्टी की सिचुएशन में घेरी जा चुकी थी, प्रेशराइज होकर कुछ किल्स जो है वो वहाँ पर थ्रो करती हुई हमें ज़रूर नज़र आती। बट अगेन टीम सोल डाउन टू लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम 52 विद 3 प्लेयर्स स्टैंडिंग। एंड अगर हम टॉप की टीम्स की अगर हम बात करें जो कि अच्छे प्लेयर एडवांटेज और साथ साथ अर्ली ट्रैक्स के साथ भी सर्वाइव कर रही है, दैट वुड बी टीम टीजेबी और निग्मा गैलेक्सी जो कि अपने अपने रीजन को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती हुई ला रही है। बिल्कुल निग्मा गैलेक्सी अपने रीजन को रिप्रेजेंट तो कर रही है, बट निग्मा गैलेक्सी का आपने देखा कि लास्ट मैच उनका काफ़ी बुरा था और इस मैच में उनको एक कमबैक की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जोन से बाहर 2 टीम्स में नजर आ रही है। टीम थोड़े वाले दोनों टीम जोन से बाहर मौजूद ज़रूर है, लेकिन एक स्प्रे चाहता हुआ मिसल की तरफ से और यहाँ पर वो डैमेज किया जाता है, तमाम काफ़ी लो किया जाता है और इसी के साथ साथ वो लास्ट बुलेट्स भी कनेक्ट कर जाते हैं, वो नॉक हो जाते हैं इसी के साथ साथ। लेकिन डिफरेंट एंगल से उनको भी डैमेज पड़ेगा, मिसल कवर में जाने की कोशिश करते हुए इस वक्त हमें नजर आएंगे और बच भी जाते हैं, बिल्कुल लास्ट एक्स भी बच जाते हैं। एक बुलेट अगर उन्होंने अटैक करती तो भी नॉक हो सकते थे। यहाँ पर एक फाइट ऐसी बनती हुई नजर आ रही है हमें, चूँकि ओपन एरिया की ज़रूर है। कोई भी प्लेयर अगर नॉक होता है तो इंस्टेंट उसका किल भी कंफर्म करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कुछ ओपन में कवर इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन हम उनको देखें आप किट लगाना उनकी तरफ से तर्क किया जाता है, पहले स्प्रे देते हैं लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगे बिकॉज उनके पास 4x और स्कारल मौजूद थी। वहीं पर ओपोनेंट प्लेयर बगी पर रोटेशन करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस फाइट को जब वो छोड़ा जाएगा, तर्क किया जाएगा, ये फाइट ज़्यादा लंबी नहीं की जाएगी दोनों टीम्स की तरफ से। वो जानते हैं कि उनके पास सर्कल में कोई बहुत अच्छा एरिया भी नहीं है और जिस जगह पर वो मौजूद है वो डिस्पर्शन भी इतना अच्छा नहीं है कि उसको ज़्यादा देर तक बनाए रखें, क्योंकि कोई भी टीम अगर किसी डिफरेंट एंगल से आती है तो वो यहाँ पर इस डिस्पर्शन का फ़ायदा उठाकर इनके ऊपर एलिमिनेशन दिखा सकती है। बिल्कुल यूएसजी की अगर हम बात करें बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश की, लेकिन फाल्कन दे वर ऑलरेडी रेडी। जिस तरह से उन्होंने जल्द अज जल्द स्मोक्स डिप्लॉय करके अपने प्लेयर को वापस अप किया, ये चीज़ दिखाती है कि टीम वर्क की कमी बिल्कुल नहीं रहने वाली।